We are doing payroll. Good afternoon, ma'am. We're doing payroll management in payroll. Afternoon, ma'am. Good afternoon. In payroll management, I have given you brief introduction about HRM, right? Then we studied various functions of management, various advantages of payroll management. Okay. Also, in the last class, we completed the structure, this framework I gave you, and the next classes, the following classes will be based on that structure, one by one. I gave you the structure so that it becomes easier for you to understand the points or the sub points that will come under that structure. Okay. What was the structure? Gross pay is equal Gross salary. Gross sale. plus allowance, and net pay is equal to gross pay, which is basic plus allowance minus deductions minus IT declaration, TDS, tax deducted at source. Income tax. हाँ, तो ब्रैकेट तोड़ोगे तो वो माइनस ही आएगा ना, ठीक है? Okay. In this class, we will study what are the initial considerations for payroll management. Initial consideration का मतलब कि बहुत बेसिक क्या-क्या रिक्वायरमेंट है किसी पेरोल का, किसी पेरोल में बेसिक क्या-क्या इनपुट दिया जाता है जो उस ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉइज का सैलरी कैलकुलेट करने में हेल्पफुल होता है, ठीक है? Just let's quickly revise what is payroll management. What is payroll? No, not management. I split the word. Very good. List of the employees. Ma'am, what is payroll? Payroll management. You have I'm through definition that the class next. one is payroll, and the other one. Payroll is the processing of him. What is payroll? Payroll is the list of employees who work in the organization and who get paid in the organization. Their salaries are given by the management, the organization. Sorry. And management is the processing of that salary, है ना? तो सैलरी को प्रोसेस करने में जो वेरियस स्टेप्स यूज किया जाता है, वेरियस कंप्लायंसेस होता है, वो जो पूरा मैनेजमेंट होता है उसको हम कहते हैं पेरोल मैनेजमेंट. पेरोल बनाने में बेसिकली आपको क्या समझ में आया कि पेरोल का मतलब होता है, पेरोल प्रोसेसिंग का मतलब सैलरी फॉर्मेशन, कि सैलरी को स्ट्रक्चर करना और सैलरी को प्रोसेस करना होता है, यही होता है ना पेरोल मैनेजमेंट? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके. Yes, ma'am. आज की क्लास Yes, ma'am. we will write down few words, few points about the initial consideration for payroll management. मतलब बहुत बेसिक कौन-कौन सी चीजें हैं जो पेरोल बनाने के लिए चाहिए किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में. I have already told you that payroll software differs from organization to organization according to their needs. किसी ऑर्गेनाइजेशन में किसी एक टाइप का पेरोल सॉफ्टवेयर होगा, किसी ऑर्गेनाइजेशन में दूसरे टाइप का, डिपेंडिंग अपॉन वेरियस एक्टिविटीज दैट ऑर्गेनाइजेशन हैज टेकन अप. ओके. Size of the organization and financial paying capacity of the organization also. Softwares बहुत महंगी मिलती हैं. इस तरीके की जो सॉफ्टवेयर आती हैं, they are very costly. And to run these softwares, they need people who are trained, highly trained. Okay, so for them they have to pay more. A good salary, a very handsome salary is paid to these people who work on these technical things. So paying capacity भी और फिर cost भी जो उस employees के लिए वो देता है. ठीक है? Draw a figure, okay? You write down. Excuse me, ma'am. Yes. Ma'am, last class में आप structure of salary बस लिखवाई थी और बोली थी next class में explain करेंगे इसको. Yes, ma'am. But this is initial consideration for payroll management, and salary structure is a part of this. So I thought that it will be better if you study this first, and then in the next class I'll deal with Yes. salary structure. Okay? Yes, Okay, ma'am. ma'am. Okay, ma'am.
description है. Discuss these points in detail. मैम 4 में क्या लिखी? Fourth is statutory requirements. Don't worry, I'll discuss it in details. You just write down as much as you can see, and then I'll dictate the point. You can write again. मैम 6th में क्या है? Sixth में है bank account details. Employee. Happy बनाएंगे तो उसकी डिटेल्स लेंगे. Completed everyone? यस मैम. Completed? 1 मिनट में. Should I erase? Completed. Yes. Okay. The first point was pay period. Initial consideration of payroll calculation का क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि इतनी चीजें, इतनी requirements, these are the basic requirements that an organization must have of you in order to process your salary. ठीक है? The first one was pay period. Pay period का क्या मतलब होता है? देखो, there are organizations that give salary on 30th of a month. 30 को salary दे देंगे. Then there are organizations that give you salary on 1st of month. There are also organizations that choose their pay period to be on payment date to be on 7th of the month. So whatever the date of payment of your salary be, ये advisable होता है convenience के लिए कि आपका जो salary है उसका, जैसे ये 1 सितंबर को से salary मिलती है तो अगस्त की मिलेगी, अगस्त की मिलेगी, तो अगस्त में जो उसका लास्ट कॉरेस्पॉन्डिंग मंथ होता है, इसको लास्ट कॉरेस्पॉन्डिंग मंथ आप कह सकते हैं. इस अगस्त में 4 से 5 दिन का गैप रखना एडवाइजेबल होता है कन्वीनियंस के लिए, इन ऑर्डर टू कीप दिस प्रोसेस हैसल फ्री. सैलरी कैलकुलेशन में बहुत सारी चीजें डाली जाती हैं, ठीक है, और अगर एंड डेट तक वो सैलरी कैलकुलेट करता ही रहेगा तो शायद थोड़ी दिक्कत होगी कैलकुलेशन में. इसीलिए एक पे पीरियड डिफाइन करना किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, जो हमारे यहाँ 7 को पेमेंट होती है, 7 को पेमेंट होती है, तो हम 1 तारीख तक ही कैलकुलेशन करेंगे. हम 1 तारीख तक कैलकुलेशन करेंगे इन ऑर्डर टू कीप द प्रोसेस हैसल फ्री. तो पे पीरियड डिफाइन करना हर ऑर्गेनाइजेशन के लिए इंपॉर्टेंट होता है. नेक्स्ट पॉइंट, salary structure. See, there are different types of organization which are functioning in the economy, like central government की यानी प्योर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो कंपनीज हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे
यूपीएससी जिसको रिक्रूट करके भेजता है, जिसका भी रिक्रूटमेंट यूपीएससी से होता है वो गवर्नमेंट, प्योर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है। ईपीएससी जिसको रिक्रूट करके भेजता है वो स्टेट गवर्नमेंट है प्योर। उसी तरीके से अदर स्टेट गवर्नमेंट भी होती है, उससे रिक्रूटमेंट मतलब बहुत चीजों का होता है। प्रोफेसर का रिक्रूटमेंट होता है स्टेट गवर्नमेंट से, सेंट्रल गवर्नमेंट से होता है, साइंटिस्ट का होता है, डीएम का होता है, तो उनकी सैलरी स्ट्रक्चर एक अलग होती है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की अंडरटेकिंग जो कंपनीज हैं जैसे बैंक्स, ठीक है, जैसे बैंक्स आप देखिएगा किसी बैंक में वहां एक ब्रैकेट में आप देखिएगा अ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग लिखा रहेगा, आप नोटिस कीजिएगा। उसका क्या मतलब होता है, वो भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं बट उसमें गवर्नमेंट का स्टेक इज टू अ लिमिट, ओके, बट प्योर सेंट्रल गवर्नमेंट है। जैसे आर्मी प्योर सेंट्रल गवर्नमेंट, सीआरपीएफ प्योर सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक, तो वैसा होता है। बीएमपी बिहार मिलिट्री पुलिस वो प्योर स्टेट गवर्नमेंट है, लेकिन कुछ अंडरटेकिंग्स भी होती है, जैसे बैंक अंडरटेकिंग है, जैसे एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग है गवर्नमेंट की, तो उनका सैलरी स्ट्रक्चर। और बताइए, और जैसे कि प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन का एग्जांपल ले लीजिए, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में ज्यादा डिफरेंस देखने को मिलता है क्योंकि बेनिफिट्स और पर्क्स या डिडक्शंस भी हो सकता है कि वो अपने हिसाब से करें, ठीक है। कुछ स्टैट्यूटरी कॉम्प्लायंस है जो यहाँ लिखे थे हम, उसके अलावा वो स्ट्रक्चर को वो अपने तरीके से फॉर्म कर सकता है। जैसे अगर आप मार्केटिंग बेस्ड कंपनी का या सेल्स बेस्ड जो जॉब होता है उसका जॉब डिस्क्रिप्शन जब आप पढ़ेंगे ना जेडी, तो उसका इंसेंटिव इस तरीके से इंसेंटिव्स लिखा रहेगा बट पे का शायद डिवीजन किया रहेगा। अगर जॉब डिस्क्रिप्शन में नहीं लिखा है तो वो डेफिनेटली ऑफर लेटर में मेंशन होगा, ऐसे लिखा रहता है। 70-30 हो सकता है, 80-20 हो सकता है, 60-40 तक हो सकता है। ये इंसेंटिव बेस्ड होता है, मतलब 80% फिक्स्ड है, 80% आपको मिलेगा, 20 के लिए यू दिस विल बी अ परफॉर्मेंस बेस्ड इंसेंटिव। देखा है, कभी सुना है ना सेल्स टारगेट अचीव करना, है ना, वही होता है कि 80 जो जॉब ऑफर में लिखा हुआ है वो तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन इस 20 के लिए आपको टारगेट अचीव करना होगा। सबसे ज्यादा ये कहाँ, सेल्स में, रिटेल में, इंश्योरेंस में, ये सब में बहुत होता है। वहां का जब जॉब लेटर ऑफर लेटर आएगा या जॉब डिस्क्रिप्शन आएगा ना, आप उसको नोटिस कीजिएगा। तो वहां पर ये इस तरीके से कहीं कहीं जगह पे 60-40 तक हो सकता है, यानी 60% फिक्स्ड है और 40% परफॉर्मेंस बेस्ड है। तो आप ये बताइए कि जब इतने 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 टाइप का सैलरी बनता है तो पेरोल तो सब सेम नहीं होती है। ऐसा नहीं है कि एक स्टैंडर्ड पेरोल का सॉफ्टवेयर है हर जगह वही यूज होता है। पेरोल सॉफ्टवेयर इज अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड आल्सो फाइनेंशियल पेइंग कैपेसिटी, फाइन। सो इतने टाइप का अगर सैलरी स्ट्रक्चर बनता है तो इतने मेरे ऑर्गेनाइजेशन में कौन सा पेरोल सॉफ्टवेयर लगा है उसमें तो ये फीड करना होगा ना कि यहाँ पे सैलरी कैसे बनती है, यहाँ का सैलरी स्ट्रक्चर क्या है। यू अंडरस्टैंडिंग दिस पॉइंट? जब सैलरी अलग अलग तरीके से बनती है तो ये इंफॉर्मेशन आपको पेरोल में फीड करना होगा कि सैलरी कैसे बनती है, राइट? जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट का ग्रेड पे कैसे होता है, उसमें वो ग्रेड पे के हिसाब से काम करती है। 5400 का हाईएस्ट ग्रेड पे वो आईएएस ऑफिसर्स वगैरह को मिलती है। जब सेंट्रल गवर्नमेंट का एसएससी रिक्रूट करती है तो एसएससी ग्रुप बी तक रिक्रूटमेंट करती है, ग्रुप बी का भी करती है, शायद बी है, सी है और बी है। सी का होता है ये क्लरिकल, डी में बहुत नीचे तबके के जैसे चपरासी वगैरह की का रिक्रूटमेंट होता है, इसमें 2400 का पे होता है। उसी तरीके से अलग अलग तरीके से सैलरी कैलकुलेट होती है, ठीक है। जनरली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की अंडरटेकिंग्स में भी कॉस्ट बेनिफिट सेम ही रहता है, बस थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होता है ना। जैसे अलाउंस वगैरह अलग होता है। एक डीएम अगर नॉर्मल लोकेशंस पे काम कर रहा है तो उसकी सैलरी अलग हो जाएगी, उसी डीएम को अगर
आप ऑफ लोकेशंस में त्रिपुरा, आसाम या नक्सलाइट जोन जो एरिया डिस्टर्ब है वहां पोस्टिंग होती है तो उनका अलाउंस बढ़ा दिया जाता है। 35,000 के आसपास ऐसे सैलरी बढ़ती है वैसे पोस्टिंग होने से, ठीक है। बॉर्डर पे जो लोग पोस्टेड रहते हैं, बिल्कुल होगी ना, वो तो एक काइंड ऑफ सिक्योरिटी देती है गवर्नमेंट। जम्मू कश्मीर वगैरह जिसकी पोस्टिंग होती है उनकी सैलरी बढ़ा के मिलती है उनको। तो यही हम पढ़ाएंगे अगली क्लास में, जब सैलरी स्ट्रक्चर पढ़ाएंगे तो कॉम्पेंसेटरी अलाउंस भी होता है वो पढ़ाएंगे उसमें। तो इस तरीके से सैलरी अलग अलग तरीके से बनती है। प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में ज्यादा सैलरी का डिफरेंस होता है organization to organization. So this information about salary structure should be known to the payroll calculation department of any organization. ठीक है, समझ में आई बात? थर्ड पॉइंट, employees type. Again, this is the same thing. There are so many employees in an organization, right? There are so many employees in an organization from peon to general manager. As the level changes, the perks, benefits, the allowance, or if you have taken some loan from the organization, आपने vehicle loan लिया है अपने salary पे, आपने house loan लिया है या आपने education loan लिया है, तो वो सब चीजों का डिडक्शन होता है ना, तो वो आपके सैलरी के हिसाब से कटती है। और बहुत सारे बेनिफिट्स है जो आपके लेवल के हिसाब से मिलता है। लोन लिए हैं तो महीने के हिसाब से कितना परसेंट आपका लोन भी मिल जाएगा और इतना परसेंट लोन मिलेगा कहाँ? मिलेगा जो, हाँ, और फिर डिडक्शंस उसके हिसाब से होता है। तो पेरोल में क्या होता है कि तुम अपना एम्प्लॉय आईडी और पासवर्ड डाल के देख सकते हो कि तुम्हारा कितना क्या स्टेटस है, तुम्हारे सैलरी का, तुम्हारी लीव का, कितनी छुट्टियां बाकी हैं, तुम्हारा कितना सीएल ले सकते हो, क्योंकि लीव इनकैशमेंट भी होता है। आपने जितनी छुट्टियां बचाई उन छुट्टियों का आप इनकैश करा सकते हैं वो लिमिट। तो एम्प्लॉय टाइप मतलब किस एम्प्लॉय का सैलरी स्ट्रक्चर प्रोसेस, सैलरी प्रोसेस करना है, ये इंफॉर्मेशन पेरोल डिपार्टमेंट के पास होना इज इम्पोर्टेंट। नेक्स्ट, स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट। व्हाट इज स्टैट्यूटरी? गवर्नमेंट रिलेटेड, जो काम गवर्नमेंट से इसमें गवर्नमेंट इन्वॉल्व हो और थोड़ा सा रिफाइन करके बोलो, बोल तो ठीक ही रहे हो टू एन एक्सटेंट। एनीवन फ्रॉम ऑनलाइन क्लास? What, ma'am? What is statutory? बता दीजिए मैम, ज्यादातर बच्चे में मैथ ग्राउंड में है। Obviously, I am going to tell you. See, statutory requirements are the mandatory requirements. Statutory का क्या मतलब होता है? Mandatory requirements. This is guided by law. जो तुम बोल रहे थे ना गवर्नमेंट बनाती है, वो गवर्नमेंट ही बनाती है। Wait a minute. Statutory requirements are the mandatory requirements that an employer has to follow before calculating the salary. आप अपने सैलरी में कुछ चेंजेस ला सकते हैं, पर कुछ चीजें ऐसी हैं, कुछ रिक्वायरमेंट ऐसी हैं सैलरी की जो गवर्नमेंट द्वारा बनाई गई है। These are the requirements of either giving you or deducting from you. These are the provisions which are made by central government, and that is why it applies to all the employers. An employer, in order to carry on his organization properly, he has to comply with all those requirements. जैसे पीएफ के बारे में सुना है, प्रोविडेंट फंड सुना है। अब प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन अपने मन से नहीं काट सकती है, ठीक है? इट इज गाइडेड बाय अ लॉ. This act was formed by, it is a legislation enacted by central government in the year 1950.
1952. Okay. The Employees Provident Fund and Miscellaneous Provision Act. ठीक, इसका इस एक्ट में क्या है? इस एक्ट में कंप्लीटली ये लिखा हुआ है, ये मेंशन किया हुआ है कि किस टाइप के ऑर्गेनाइजेशन में ये एक्ट लगता है, कहाँ इम्प्लीमेंट होता है, कितने लोग मिनिमम होने चाहिए ऑर्गेनाइजेशन में जिसमें ये एक्ट लगता है, और लगने के बाद आपका पैसा किस तरीके से कटेगा। तो फॉर मोस्ट ऑफ द जनरल ऑर्गेनाइजेशंस, इसका ब्रैकेट थोड़ा ऊपर नीचे भी है, बट जनरली 12% आपके सैलरी का कटता है और 12% एम्प्लॉयर भी देता है। आपसे जितना काटा उतना ही वो खुद भी देता है। ठीक है, ये उसको करना है, ये मैंडेटरी कंप्लायंस है, स्टैट्यूटरी कंप्लायंस है। क्यों करना है? क्योंकि ये सेंट्रल गवर्नमेंट का एक्ट है एंड दिस कम्स अंडर सोशल सिक्योरिटी लेजिस्लेशन। सोशल सिक्योरिटी क्या होती है? You will have a separate class on that. Okay, don't worry. सोशल सिक्योरिटी बस अभी नाम से समझ लीजिए कि सोशल सिक्योरिटी का मतलब है कि सोशल आपको सिक्योर किया जाता है बहुत सारे कंडीशंस में, जैसे पीएफ का पैसा आप रिटायरमेंट होने के बाद रिटायरमेंट बेनिफिट में निकाल सकते हैं। पीएफ का पैसा आप देयर इज प्रोविजन, जैसे जनरल प्रोविडेंट फंड का था पहले, आप बेटी की शादी के समय में निकाल सकते थे पैसा, एजुकेशन के समय में आप पैसा निकाल सकते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट ये समझती है कि किसी मिडिल क्लास के लिए लमसम पैसा देना एक साथ इज वेरी डिफिकल्ट। तो इन ऑर्डर टू प्रोवाइड देम सिक्योरिटी इस तरीके के प्रोविजंस को लाया गया है। ठीक है, ये रिटायरमेंट बेनिफिट की तरह काम करता है, एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड मिसलेनियस प्रोविजन एक्ट, और एम्प्लॉयज को कंप्लाई करना है इससे, पीएफ का पैसा देना है, उसको कंट्रीब्यूट करना है। ये कहाँ जाता है पैसा? ये पैसा गवर्नमेंट के पास जमा होता है, 12% एम्प्लॉयर को और 12% आपका। ठीक है, और किस तरीके का स्टैट्यूटरी कंप्लायंस होता है? एक तो पीएफ हो गया, और देखिए एक और होता है, हम सब पढ़ाएंगे बाद में डिटेल्स में, द पेमेंट्स ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट 1972, ये भी स्टैट्यूटरी कंप्लायंस है। दिस इज अ लॉ which was passed by central government. ग्रेच्युटी का क्या मतलब होता है? आपके 5 साल की कंटिन्यूअस सर्विस, when you have rendered 5 years of continuous service to any organization, the employer is supposed to give you gratuity payments. ये आपको पैसा मिलता है, लेकिन 5 साल की कंटिन्यूअस सर्विस रेंडर करने के बाद। कैसे मिलता है, क्या मिलता है, इसका कैलकुलेशन है। यू डोंट नीड टू, हर 5 साल में नहीं, 5 साल मिनिमम कंप्लीट होना ही होना चाहिए, फिर वो तुमको लमसम अमाउंट में जब तुम छोड़ोगे तब तुम निकाल लो। ठीक है, और बीच में हाँ, अगर तुम ऑर्गेनाइजेशन छोड़ रहे हो तो तुम निकाल सकते हो, तब तो वो पैसा लोगे ही ना, वो तो तुम्हारा पैसा है। और बीच में भी निकालने का प्रोविजन है, जैसे किसी को बहुत कोई क्रोनिक डिजीज है, ठीक है, कोई क्रोनिक डिजीज है जिसके इलाज के लिए पैसा चाहिए तो आप निकाल सकते हैं, डिसेबलमेंट है तब आप निकाल सकते हैं। नहीं, ये एम्प्लॉय का ये डिडक्शन नहीं है, दिस इज अ पेमेंट बाय एम्प्लॉयर, उसका पैसा नहीं कटता है। और क्या है देखिए, ESI एक्ट 1948, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट 1948, जो लोग ESI का पैसा जिनका कटता है, दिस इज मैंडेटरी फॉर वर्कर्स whose salary is up to
21,000 rupees. अप टू 21,000 जिसकी सैलरी है उनका ईएसआई का पेमेंट, उनका ईएसआई का डिडक्शंस करना ही करना है एम्प्लॉयर को, ठीक है। और इसमें एम्प्लॉयर भी अपना कंट्रीब्यूशन देती है। 3.25% एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करती है आपके वेज का और 0.75% आपकी सैलरी से पैसा कटता है, आपकी पैसा कटता है। बोलो, एनी क्वेश्चंस? 3.25% वेज का डिडक्शन होता है। 3.25% वेज के डिडक्शंस, वेज का आपके वेज का डिडक्शन करके एम्प्लॉयर इतना कंट्रीब्यूट करती है ईएसआई में, ठीक है। ईएसआई जो तुम्हारा फंड होगा उसमें, और ये 0.75% ये तुम्हारी सैलरी से कटेगा। ये बहुत जो नीचे तबके के वर्कर्स थे, जो इंडस्ट्रियल वर्कर्स थे, किसी भी एक्ट को ऐसे ही नहीं लाया जाता है, उसके पीछे का बहुत कारण होता है कि किसी चीज का प्रावधान अगर गवर्नमेंट पास कर रही है तो उस पर बहुत थॉरो रिसर्च होता है। एंड ईएसआई वाज वन सच एक्ट जिसको पूरे एशिया में एक बहुत ही रिवोल्यूशनरी एक्ट बताया गया था। ये इतना कॉम्प्रिहेंसिव एक्ट है कि इसमें लगभग सारी सोशल सिक्योरिटी आती है, सबका प्रावधान है, सारे प्रोविजंस एडेड हैं इसमें, ठीक है। तो इसीलिए ये सब डिटेल्स में पढ़ना है, इसलिए अभी हम लोग उतना डिटेल नहीं जाएंगे। आई विल टेक एन एंटायर क्लास ऑन दैट ईएसआई। तो ईएसआई एक्ट में 1948 में इतना कंट्रीब्यूशन दिया जाता है। 137 सैलरी जिसकी पर डे की है उसको वो एग्जेम्प्टेड है, उसका पूरा पैसा यानी ये पूरा 4% कौन देगा? समझ में आ रहा है? स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट क्या है कि आप सैलरी ऐसे ही प्रोसेस नहीं कर सकते हैं कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, आपको इन चीजों का ध्यान रखना होगा। और एक एक्ट आता है इसमें, मिनिमम वेजेस एक्ट, मिनिमम वेजेस एक्ट 1948। मिनिमम वेजेस का क्या मतलब होता है? न्यूनतम मजदूरी। न्यूनतम मजदूरी सुना है ना? न्यूनतम मजदूरी। मैम ये एज वाइज होता है ना कि आज इतना कम आप नहीं दे सकते गवर्नमेंट। नहीं, ये गवर्नमेंट मिनिमम वेजेस अलग स्टेट्स का अलग होता है। बिहार गवर्नमेंट ने जैसे कि अपने लेबर को 5 कैटेगरी में डिवाइड किया है, अनस्किल्ड, स्किल्ड, हाईली स्किल्ड एंड सुपरवाइजरी। ये बिहार गवर्नमेंट की स्टेट गवर्नमेंट का डिवीजन है। 5 कैटेगरीज में लेबर को डिवाइड किया जाता है। टेक्नीशियन आते हैं उसमें, इलेक्ट्रिशियन आते हैं, स्किल्ड, जिसकी जो कैटेगरी है वो लिस्ट। तो उस लिस्ट में हर कैटेगरी के लिए मिनिमम वेज तय किया गया है, ठीक है। अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन, देखो वी आर टॉकिंग अबाउट ऑर्गेनाइज सेक्टर, अनऑर्गेनाइज सेक्टर का डेटा बहुत मुश्किल है इंडिया में लेना, समझ में आया? क्योंकि अनऑर्गेनाइज सेक्टर का रिकॉर्ड रखना इज वेरी डिफिकल्ट। Whatever we talk, we'll talk in context of organized sector, which is registered under, which comes under the guidance of government, ठीक। तो वो गवर्नमेंट सारे कैटेगरी का मिनिमम वेजेस अलग है, तो उतना तो आपको देना ही होगा, आप उससे ज्यादा दे सकते हैं और उससे कम नहीं। What happens if these statutory compliances are not adhered to? सारे एक्ट्स में ऑफेंसेस एंड पेनल्टी करके एक सेक्शन आता है। उस सेक्शन में ये बताया गया है कि अगर कोई एम्प्लॉयर नहीं देता है, नहीं अडेयर करता है, तो उनके ऊपर किस तरह का फाइन, पेनल्टी या जेल, इसमें क्या प्रावधान है, ये उसमें मेंशन है, ठीक है। गवर्नमेंट के लॉ को ओबे करना ही करना। नेक्स्ट पॉइंट, सैलरी कैलकुलेशन मोड। I already told you that there are organizations who will keep their employees on provision period for 1 year. In that 1 year, maybe you do not get paid leaves. Paid leaves मतलब आपकी छुट्टी का पैसा कटेगा, इसको कहते हैं LWP, leave without pay.
हो सकता है कि ये पीरियड एक्सटेंड भी हो किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, तो पैसा कटेगा। तो LWP का प्रोविजन जिस ऑर्गेनाइजेशन में है वहां पे तो सैलरी मोड के कैलकुलेशन में LWP भी काउंट होगा, पैसा काट के ही मिलेगा। तो ऐसी ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो ऑर्गेनाइजेशन में कंसिडर की जाती है। तो वहां के सैलरी के प्रोसेसिंग में मोड, मतलब वहां पे क्या क्या मोड है कैलकुलेशन का, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो सैलरी कैलकुलेशन का मोड किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में का इंफॉर्मेशन पेरोल मैनेजमेंट के पास होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट, Account details. बैंक अकाउंट डिटेल्स। See, when you join an organization, obviously you furnish your bank account details to the organization Yes. because the salary will be processed and sent to you in your bank account details, right? But the point is, you may have more than one bank account apart from what you have furnished in the organization. Yes. So the payroll calculation has to check and verify the data whether your bank account is, this is only supposed to be the bank account where salary is furnished, or there is some discrepancy. Understood? क्योंकि पेरोल में जो भी इनपुट डाला जाता है, आप सोच सकते हैं कि किसी ऑर्गेनाइजेशन में 1.5 लाख एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, तो वहां आना और जाना तो लगा रहेगा, एम्प्लॉयज का लगा रहेगा ना। तो पेरोल कैलकुलेशन बहुत टफ इसलिए होती है क्योंकि वहां ये देखना होता है कि कोई डेटा की डुप्लीकेसी ना हो जाए, उसको दोबारा ना डाल दिया जाए, वैसे किसी एम्प्लॉय का नहीं बन जाए, सैलरी अकाउंट में ना चली जाए जो टर्मिनेट हो चुका है, जो अब छोड़ के जा चुका है, या किसी का डबल फिगर ना ऐड हो गया हो। इन चीजों का है ना। तो पेरोल मैनेजमेंट क्या करता है, पेरोल कैलकुलेशन आपकी सैलरी को चेक करता है ना। कोई भी डेटा, कोई भी इनपुट डालने के पहले इट thoroughly checks and verifies the reliability of data. Okay? Apart from this, ये initial consideration हो गया. I have explained you the points. Now listen to one more point. सिर्फ बैंक अकाउंट का डिटेल्स ही नहीं, जब आपका पीएफ कटता है तो आपका एक पीएफ नंबर होता है, ईएसआई कटता है तो ईएसआई का नंबर होता है, ठीक है। जब आपका बैंक अकाउंट दिया जाता है तो बैंक अकाउंट का डिटेल्स होता है, पैन नंबर होता है, आधार कार्ड होता है। तो ये सारी कॉन्फिडेंशियल चीजें आपने एम्प्लॉयर को दे रखी है, राइट। ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग दोस डेटा। इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पेरोल मैनेजमेंट, गुड पेरोल मैनेजमेंट, दैट ये डेटा किसी भी अनऑथेंटिकेटेड यूजर के हाथ में ना लगे, both inside and outside the organization. Financial data, किसी का भी financial details बहुत confidential और sensitive चीज होती है ना। So in that case, a good payroll department of the organization has to make sure that their payroll, that your confidential data should not be in hands, should not go in hands in any which way to an unauthenticated user, either inside the organization or outside the organization. तो वो सीक्रेसी मेंटेन करना भी पेरोल मैनेजमेंट का काम होता है। देयर इज अ टीम व्हिच वर्क्स ऑन पेरोल, और सबके पास आईडी नहीं होती है, और आपकी हर एम्प्लॉयर के पास अपनी आईडी, अपना पासवर्ड होता है। आप अपना लॉगिन करके अपना स्टेटस देख सकते हैं, आपका पीएफ कितना कटा, आपका टैक्स कितना कटा, आपका सैलरी कितना है इस महीने का, आपका अटेंडेंस कैसा है, ठीक है, आपका लीव कितना बचा है। Okay, you understand this? Yes. Initial consideration for payroll calculation. Okay? You understood everything? Yes, ma'am.